Okay, I think the voice is clear now, right? So we'll begin our learning today in a few minutes, and we will be doing a quick revision of whatever we have read in the last class, right? Then we'll move ahead. So we were doing vectors, right? I derived two very important formulas. I'll just write them down over here. The formula of resultant of two vectors. Resultant I am denoting by R vector. और उसका magnitude का formula हमने क्या derive किया था students? We derived it under root of mod A square plus mod B square plus 2 mod A mod B cos theta. Now this was a very important formula. This derivation will also be required in your board's exam. When you give the exam, it definitely comes actually, right? So please make sure that you understood the derivation completely. Okay? This was the formula of resultant students. What is theta? Theta is the angle between the two vectors. And whenever we apply triangle law of vector addition, you should make sure that it is a head to tail connection. Okay? One more thing we derived, if you remember, tan theta, right? Tan theta. Tan theta नहीं बोलते हम उसको अल्फा बोला था हमने, right? Tan alpha equal to b sin theta upon mod A plus mod B cos theta. So this was the complete derivation, right? So these two formulas are extremely important for us in the future. In every chapter of physics, we will require them, okay? So now moving ahead, we'll do some questions. What type of questions come actually from the triangle law of vector addition so that the things get more and more clear. Acha, before that, I'll just discuss quickly the three cases, the special cases which were derived from these two formulas, right? So let us do that. So we had three cases, students. Case one was when theta is equal to 0 degree. Case 2 was when theta is equal to 180 degree. And case 3 was when theta is equal to 90 degree, the most important case, right? So I'll just write down all the important formulas over here. So case 3, theta is equal to 90 degree. क्या आया था? Resultant. The resultant reduces like this. Mod A plus mod B. If you remember the last class, you might be knowing how it came, right? In this case, the resultant was reduced to how much? Mod A minus mod B. And this one, the most important case by far, whenever two vectors are perpendicular to each other, the formula of resultant is given as under root of mod A square plus mod B square. तो ये हमारी कंप्लीट नॉलेज है पिछले क्लास की. अब हम इससे आगे बढ़ते हैं. लेट अस सी अ फ्यू क्वेश्चंस व्हिच मे कम फ्रॉम हियर. ओके, सो see here, one of the most famous question, you will find it in most of the standard books like H.C. Verma, Rashnik Halide and all. Okay, so let's do that. First of all, see carefully. As you can see, it's a hexagon, students, right? It's a hexagon. ठीक है, अभी मैं बता रहा हूं कि ये क्या है. देखो ध्यान से. This one is my A vector, students. This one is my A vector. This one is my B vector. This one is my C vector. This one is D vector. This one is E vector. And this one is F vector. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस सिस्टम. ओके, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ दिस. हाउ मेनी वेक्टर्स आर देयर? 6 वेक्टर्स. आप ध्यान से देखो, सारे वेक्टर हेड टू टेल कनेक्शन है. देखो यहाँ पे, the head of A vector is being connected to tail of B vector. Similarly, head of B vector is connected to tail of C vector. Head of C vector is connected to tail of D vector and so on. So all the vectors are head to tail connection. ठीक है, हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है. ओके, तो सिंपल मेथड यूज करेंगे. ध्यान से देखना. आई एम सॉल्विंग दिस वन आउट. हमें तो एक बात पता है कि whenever two sides are represented by the, whenever two vectors are represented by the two sides of a triangle, the third side represents the resultant, right? तो आप बस
इन दो सॉरी इन दो वेक्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट करो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. क्या ये हेड टू टेल कनेक्शन है? यस. आर दे रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल? यस. सो द थर्ड साइड विल बी लाइक दिस, राइट? सो दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो मैं इसे ब्लू कलर से बनाता हूँ. This is the third side and it will represent how much, students? A plus B vector according to our triangle law of vector addition. ठीक है. अब सुनो आगे. अब क्या है ना, अब हमें A और B का काम खत्म हो चुका है, राइट? Now A and B has no use whatsoever because हमने A और B को रिप्लेस कर दिया है उनके रिजल्टेंट A plus B से. तो now if I redraw the diagram it would look something like this, students. ध्यान से देखना. All other vectors will be intact as it is. उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किए हमने. डी वेक्टर, ई वेक्टर, सी वेक्टर एंड एफ वेक्टर, ये चारों वेक्टर एज इट इज है. फाइन. बट हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को तो रिप्लेस कर दिया विथ विच वेक्टर? दिस वन, बिकॉज दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, राइट? जैसे अब हम क्या करेंगे, ए और बी को नहीं बनाएंगे इस डायग्राम में. वी विल ड्रॉ देयर रिजल्टेंट ए प्लस बी. सो ए प्लस बी लुक्स लाइक दिस, स्टूडेंट्स. देखो ध्यान से. this one, this is my A plus B. Simple. Step 1 done. Now come to step 2. Step 2 क्या है? Can anyone tell me what is the relationship between them, students? Anti-parallelism. Exactly. ये क्या है? Anti-parallel. क्या इनका length same है? Is their length is same? Yes, that means their magnitude is same, but direction is opposite. है ना? तो जब भी दो वेक्टर होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, एंड व्हेन वी ऐड देम अप, व्हाट डू वी गेट द रिजल्ट? कैन यू टेल मी, एनीवन? Can anyone tell me, when we add two vectors which are equal in magnitude and opposite in direction, what is their resultant? Anyone? I have taught you this thing. अब देख लो ना, केस 2. अरे ये तो वही है जो हमने पढ़ा था, केस 2. थीटा इज 180 डिग्री. तो क्या होता है, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करते हैं मैग्नीट्यूड्स को. बट मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका मैग्नीट्यूड सेम है, राइट? मैग्नीट्यूड सेम है, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 0 आएगा. कितना आएगा? 0. इसका मतलब, कैन आई से दिस थिंग? प्लीज सी हियर दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर equal to the magnitude of A plus B plus C plus D plus E. ऐसा मैं इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि दोनों ही वेक्टर की लेंथ सेम है, राइट? और जब ऐसा होगा, this situation is valid over here, you agree, right? Now simply adding them up will give you what? It will give you 0, right? दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में, ये वही बात हो गई कि एक ब्लॉक है, 10 न्यूटन आपने इधर लगाया और 10 न्यूटन लेफ्ट साइड लगाया. तो what is the net force on the block? It's absolutely 0, right? So that is what is happening over here. तो कितना आया भाई रिजल्ट? What is the result? Final result. If we add these two, तो can I say, when we add these two, तो हम ऐसे लिखेंगे A plus B plus C plus D plus E. ये तो हो गया ब्लू कलर्ड वेक्टर, दिस वन. अब इसमें हमें ऐड करना है F वेक्टर, तो प्लस F, and this will definitely result to 0. Is it clear? It is going to result to 0, right? So the answer is how much, students? It's 0 answer. ठीक है. तो आप ध्यान रखना एक बात को, एक यहाँ पे थंब रूल की तरह एक नोट लिखाऊंगा. ध्यान से देखो इस ओरिजिनल डायग्राम को फिर से. A B C D E F. How many vectors were there? 6 vectors. क्या all the 6 vectors were connected head to tail? Yes. Were they forming a complete closed loop? Yes. क्या ये closed loop बना रहे हैं? बिल्कुल. Hexagon is a closed figure. In fact, pentagon is also a closed figure. Square is also a closed figure. Decagon, octagon, कुछ भी ले लो आप, closed figure ही होगा, right? तो in that case, what do you infer the result from here? कोई बताएगा मुझे क्या result निकल कर आया? रिजल्ट ये आया कि if any number of vectors are connected in a closed figure such that all the vectors are head to tail connection, then the resultant of all the vectors is always 0. Resultant of all the vectors is always 0. तो मैं यहाँ पे नोट डालकर लिखूंगा इस चीज को. It's a very important statement. Note, if
many vectors are connected in a head to tail connection. Head to tail connection. And they form a closed loop. And they form a closed loop. Then the resultant is always zero. Resultant is always zero. तो आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, you can directly write it zero, right? So this is the answer, and this is a very very important statement which might help you in assertion, reason and many other things. ठीक है? Although अब नहीं होगा assertion, reason, but you never know when the trend is again changed. Okay? So I hope it is clear to everyone. Okay, great. Now I'll give you one more example and I'll check whether you understood it or not. ये तुम्हें solve करना है, ठीक है? So let us take the example, students. My question is like this. See here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. फिर से 6 वेक्टर, फिर से हेक्सागोन, राइट? तो मैं नेम कर देता हूं इन्हें A वेक्टर, B वेक्टर एज अर्लियर. सब कुछ सेम है, राइट? क्या कुछ डिफरेंस है? कैन एनीवन टेल मी, इज देयर एनी डिफरेंस और इट इज एग्जैक्टली सेम? कौन बताएगा मुझे? आई एम वेटिंग इन द चैट बॉक्स. यू कैन लेट मी नो. Is there anything different in this question and the earlier question? Tell me. Yes. In the co-host account, please. Actually, see here. A vector and B vector are connected head to tail, that's fine. B and C are connected head to tail. C and D are connected head to tail. D and E are connected head to tail. But यहाँ पे देखो आप E और F को मैंने कैसे कनेक्ट किया है? E का हेड यहाँ पे है. E का हेड ये है, स्टूडेंट. See here. The head of E is here. And the head of F is also here. तो E और F के बीच यहाँ पे head to tail connection नहीं है. प्लीज नोट करना. क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, थोड़ा हल्का सा कंफ्यूजन होगा, गलत हो जाएगा, राइट? You have to carefully observe the direction of arrows, right? So this is a different question as compared to the earlier question, isn't it? Yes, it is, right? So its answer will be different, definitely, because the connection between E and F is not head to tail. So I'll give you 4 options here. You have to solve and tell me what is the correct answer. Sabhi solve करेंगे. First answer. Actually, what you have to find, I'll tell you. Resultant of all the vectors. Find the resultant of all the vectors. Find the resultant. It's a previous AIMS question actually. JEE Mains में भी आया था. Resultant of all the vectors. You should be able to solve it within 2 minutes, है ना? So your 4 options are: first option is F vector, second option is 2F vector, third option is 0, and fourth option is minus F vector. Chalo, start solving this one. You have 2 minutes and your time starts now. Your time is up. Let me explain. Okay, Azam got the answer. Azam is correct. It's absolutely correct. Very good. It's 2F is the correct answer, है ना? So if you follow the same step now, which I did in the last example, you will definitely get the answer. देखो मैं दिखाता हूँ कैसे. सुनना, ध्यान से सुनना. मैं तो पहले बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा. ये A और B मुझे दिख रहा है हेड टू टेल. I'll replace A and B with this one, and this one will be what, students? A plus B, है ना? So I'll just draw it with a different color. This is my A plus B. अब हमें A और B को भूल जाना है. A और B का काम हो गया खत्म. अब आप देखो A, ये वेक्टर ब्लू कलर्ड वेक्टर A plus B, and this one is C. So now we can combine them because they are also head to tail, right? इनको कंबाइन करता हूं मैं इस कलर से. देखो आप, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? A plus B plus C. अब इनके पीछे के सारी चीजें भूल जाओ. A, B और C को भूल जाओ. Now can you see this vector A plus B plus C and D? Can I further combine them? Yes, I can combine them. And their combination would be written as how much, students? ये कितना होगा? A plus B plus C plus D. ठीक है? अब फाइनली, अब आपको ये वेक्टर दिख रहा है A plus B plus C plus D,
और ये दिख रहा है ई, क्या ये दोनों हेड टू टेल है? यस। तो क्या मैं इन दोनों को फर्दर कंबाइन कर सकता हूँ? तो इन दोनों को फर्दर कंबाइन करने पे क्या, अभी कुछ देर के लिए आप भूल जाओ कि यहाँ पे एफ वेक्टर था, फॉरगेट अबाउट दिस, ओके। व्हेन यू कंबाइन देम फर्दर यू विल गेट दिस रिजल्ट। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ये स्टूडेंट्स, एंड दिस वेक्टर वुड बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ठीक है, अब सब कुछ भूल जाओ, ए बी सी डी ई को भूल जाओ, क्योंकि अब तुमने ए बी सी डी और ई के रिजल्टेंट को इस वेक्टर से रिप्लेस कर दिया है, राइट। तो अब इसको अलग से ड्रॉ कर लो, जस्ट ड्रॉ इट सेपरेटली। दिस इज माई ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी। बट डोंट फॉरगेट यहाँ पे पहले से कुछ था, क्या था यहाँ पे? एफ वेक्टर था, एफ वेक्टर भी ऐसा ही था। तो क्या हमें वापस से एफ वेक्टर को यहाँ पे लगा देना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। दिस इज एफ वेक्टर। क्या एफ वेक्टर और इस बड़े वाले वेक्टर की लेंथ सेम है? यस। मतलब इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम। अब इनको फर्दर ऐड करेंगे और इनका डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम। तो कौन सा केस आया? केस वन। क्या हमें दोनों को डायरेक्टली ऐड कर देना चाहिए? यस। बट इनका मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब ये पूरी वेक्टर जो खतरनाक सा लिखा है ना, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी, ये एक्चुअली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो एफ के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। और जब फर्दर, मतलब ये एफ, ये वेक्टर एफ है तो ये भी एफ है, और जब हम इनको फर्दर ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर कितना होगा? 2f। फाइनल आंसर विल बी हाउ मच स्टूडेंट्स? 2f वेक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 2f वेक्टर, है ना। So this is the correct answer to the question. Fine. I hope it is clear to everyone. Yes, yes. Okay. So just go through it for a second. And you can ask your doubts if you have any. It's all about simplification. Although there are many laws of adding vectors. मैंने तुम्हें अभी एक पढ़ा triangle law. Later on you will come to know as a parallelogram law of vector addition, polygon law of vector addition. But ये सारे laws जो है ना, सब basically बने हैं किससे? triangle law से. इसीलिए triangle law is the most important. You can answer each and every question just with the help of triangle law itself. Although I'll tell you polygon law as well as parallelogram law, but always make sure to use triangle law whenever you get any question, okay? क्योंकि बाकी सभी law इसी के derived versions हैं, ठीक है? So from here I can tell you one more thing. See here, let me draw a polygon once again. See, मैंने दोनों ही केसेस में polygon hexagon लिया है, but it's not necessary. आप कोई भी polygon लो, आप उसको further reduce इसी form में करोगे, right? And this rule is valid for any polygon. Okay, I have not written anywhere यहाँ पे हेक्सागन मैंने नहीं लिखा एक्सप्लिसिटली, तो एनी पॉलीगॉन के लिए ये रूल वैलिड होगा। तो मान लो ये एक पेंटागन की तरह दिख रहा है हमें, राइट। लेट दिस बी ए वेक्टर, let this be b vector, let this be c vector, and let this be d vector. You can clearly see all the vectors are connected as head to tail connections, है ना, head to tail connection. अब e vector मैं बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। फाइन। कैन यू सी ई वेक्टर और डी वेक्टर को मैंने हेड टू टेल कनेक्ट नहीं किया है, टेल टू हेड कनेक्ट किया है, राइट। यू कैन क्लियरली सी हियर दैट द हेड ऑफ ई वेक्टर इज हियर एंड द हेड ऑफ डी वेक्टर इज हियर, तो दोनों हेड टू हेड कनेक्टेड है, ठीक है। फॉर द टाइम बीइंग फॉरगेट अबाउट ई वेक्टर। आपके पास चार वेक्टर है, कौन से चार? ए बी सी और डी। क्या ये चारों वेक्टर represents the four different sides of a polygon? Yes or no? Yes, they are representing the four different sides of polygon and all are connected as head to tail connections. ठीक है, तो whenever this type of scenario will be presented to you, the resultant of these four vectors can directly be drawn. The resultant, I repeat, the resultant of these four vectors can directly be drawn like this. See here, मैं इन चारों वेक्टर को रिप्लेस कर सकता हूं इस वेक्टर से, एंड दिस वेक्टर विल बी माय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
plus C vector plus D vector. Yes or no? This is what actually I proved in the earlier slide, right? कि अगर आपके पास ऐसे चार, देखो ना आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास पांच थे ना, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 थे। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, फॉरगेट दिस वेक्टर एंड सिंप्लीफाई ऑल द थिंग्स। ठीक है, तुमने इस वेक्टर को, एफ वेक्टर को फॉरगेट करके पूरी चीजों को सिंप्लीफाई किया। आफ्टर दैट व्हाट यू गॉट, इन सबको सिंप्लीफाई करके तुम्हारे पास ये आया, which was equal to f vector, right? So that is what I am saying, that whenever we are given with any number of vectors which represent the adjacent sides, please note my words, adjacent sides of a polygon, कोई भी polygon हो, वो triangle हो, rectangle हो, square हो, rhombus हो, पेंटागन, हेक्सागन, डेकागन, ऑक्टागन, कुछ भी, सबके लिए वैलिड है। ओके, सो इफ any number of vectors represent the adjacent sides of a polygon with a head to tail connection, ठीक है, then यहाँ पे ये नहीं गिवन था, ठीक है, हमें इसका रिजल्टेंट निकालना था। in that case the resultant will be represented by that side which completes the polygon। कौन सा साइड? that side which completes the polygon। बट ध्यान रखना इस बात का कि जब तुम ये वाला साइड बनाओगे तो इसमें एरो का डायरेक्शन अपोजिट रहे एज कंपेयर टू अदर एरोज, अदरवाइज तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, राइट? सो दिस इज माय फाइनल आंसर एंड दिस वेक्टर will represent the resultant of all the four vectors a plus b plus c plus d। पता है इसको क्या बोलते हैं? This law is called Polygon's law of vector addition। What do we call this, students? We call this Polygon law of vector addition। As you can see कि before explaining the polygon law, सोचो अगर मैं तुम्हें ये नहीं बोलता कि ये polygon law है, तो क्या तुम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते? बिल्कुल दे पाते, अभी अभी तो दिया हमने, राइट? That means polygon law is a derived version of triangle law only, ठीक है, but still syllabus में है, therefore I'll teach you separately this thing, but remember that always use triangle law to get the answer, you will definitely get the answer, ठीक है? ओके, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक और सिचुएशन हो सकता है, आप ध्यान से देखना। मान लो हमारे पास ये ए वेक्टर है, ठीक है, एंड ये बी वेक्टर था हमारा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो टेल मी वन थिंग, लेट दिस एंगल बी थीटा। स्टूडेंट्स, क्या हेड टू टेल कनेक्शन है? बिल्कुल है। इनका रिजल्टेंट क्या ये होगा? सबको मालूम है, हमने पढ़ चुका है, राइट? ट्राइंगल लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एंड दिस वुड रिप्रेजेंट ए प्लस बी वेक्टर। बट आप एक बात सोचो, क्या मैंने तुम्हें बताया था वेक्टर इज फ्री टू बी मूव्ड एनीवेयर इन द स्पेस एज लॉन्ग एज इट्स लेंथ एंड इट्स ओरिएंटेशन डज नॉट चेंज, राइट? तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ये जो बी वेक्टर है यहाँ पे, इसको यहाँ से उठा के यहाँ रख दूं? बिल्कुल कर सकता हूँ, एज लॉन्ग एज आई एम टेकिंग इट पैरेलल। क्या ये और ये पैरेलल है? बिल्कुल है। क्या लेंथ भी सेम है? बिल्कुल है। तो आई कैन डू दिस ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स, राइट? सो बी वेक्टर कैन आल्सो बी ड्रॉन ओवर हियर लाइक दिस। दिस इज आल्सो बी वेक्टर, राइट? सिमिलरली क्या मैं इस ए वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ बना सकता हूँ? एब्सोल्युटली, एज लॉन्ग एज आई एम मूविंग इट पैरेलल, देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट? तो मैं इस ए वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ बना देता हूँ। डन। अभी ध्यान से देखो, ये डायग्राम क्या है? व्हाट इज दिस डायग्राम ऑल अबाउट? इट इज अ पैरेललोग्राम। स्टूडेंट्स, क्या है ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया, ध्यान से समझना इस सिचुएशन को। सोचो हमारे पास ये एक ए वेक्टर है एंड ये बी वेक्टर है, फाइन। इन दिस सिचुएशन you can clearly see that the a vector and b vector are not connected head to tail। इन्हें मैंने कैसे कनेक्ट किया है? टेल टू टेल कनेक्शन। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये a वेक्टर और ये b वेक्टर, तो ये टेल टू टेल कनेक्शन है ना। तो इन सिचुएशन में द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स, ये एक्चुअली में तो एक पैरेललोग्राम ही बनेगा स्टूडेंट्स। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज गिवन बाय दिस डायगोनल। ध्यान से देखो, डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम है ना। Isn't it diagonal of the parallelogram? Yes, it is। तो ये हमारा रिजल्टेंट होगा। तो इसी को बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कुछ भी नहीं है, सुनो बात।
to know the parallelogram law of vector addition, we should connect the two vectors tail to tail, ठीक है, instead of head to head. और tail to tail connect करोगे, उसके बाद जो imaginary parallelogram बन रहा है, ये बन रहा है ना parallelogram, उसका diagonal जो होगा, that will give you the resultant. So again, although I have told you this, but there is no point of using this thing, ठीक है, आप triangle law ही use करो, कोई problem नहीं. ध्यान से देखो, can you see this triangle? Can you see this triangle? इस triangle पे ध्यान देना, दिख रहा है सबको? इस ट्राइंगल में देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो हमने इसको क्या बोल दिया, ए प्लस बी. ओके, अब भूल जाओ उस ट्राइंगल को, कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ट्राइंगल, अपर ट्राइंगल दिख रहा है ये वाला. यहाँ पे ये क्या है स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस, बी वेक्टर, एंड व्हाट इज दिस, ए वेक्टर. तो अगर इस ट्राइंगल की बात करूं तो, इस ट्राइंगल की बात करूं तो क्या यही होगा ट्राइंगल लॉ, दिस विल रिप्रेजेंट बी प्लस ए, राइट. तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. मतलब आप a प्लस बी ऐड करो या b प्लस ए ऐड करो वेक्टर्स में, इट डजंट मेक अ डिफरेंस, है ना, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट. फाइन. So parallelogram law of vector addition is nothing but it's just a derived thing from triangle law, ठीक है. इसी को हम पैरेललोग्राम लॉ बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ. बट अगर कोई एक्सप्लिसिटली पूछ दे तुमसे कि पैरेललोग्राम लॉ में हेड टू टेल कनेक्शन करना है या टेल टू टेल, तो यू विल टेल टेल टू टेल और रिजल्टेंट इज गिवन. अच्छा, एक्चुअली मैं तुम्हें स्टेटमेंट भी बता दूं इसकी, सुनो, बुक में यही मिलेगा. इफ टू वेक्टर्स represent the two adjacent sides, adjacent मतलब अगल बगल वाले, adjacent sides of a parallelogram in such a way that they are connected tail to tail, then the diagonal of that parallelogram represents the resultant of the two vectors. ठीक है, although never will be used in solving numericals, but still अगर मुझसे जब तुम definition देखोगे NCERT या किसी book में, तो don't get confused. For that purpose I have explained it to you, otherwise there was no point of explaining this. ठीक है, तो this is my parallelogram law of vector addition. तो हमेशा यूज क्या करना है, हमें ट्राइंगल लॉ ही यूज करना है, ठीक है. आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू. अब सुनना आगे की कहानी. तो वेक्टर एडिशन, डोंट वरी, तुम सीख चुके हो वेक्टर एडिशन, एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. वी विल डू दिस इन एवरी चैप्टर, हर चैप्टर में इसका यूज है, राइट. तो स्लोली एंड ग्रेजुअली in the next class, actually next class we'll have a problem solving session, ठीक है. In that session we will do all the possible questions of triangle law, law of vector addition as well as subtraction. तो subtraction पढ़ लेते हैं जल्दी से. subtraction of two vectors, right. तो subtraction कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, it's just addition. ध्यान से सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं a माइनस b निकालना है, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि आई विल एक्चुअली नॉट सब्ट्रैक्ट b विथ a, आई विल ऐड माइनस b विथ a. क्या बात तो सेम ही है ना. आप सोचो, मुझे यही निकालना था ना a माइनस b, तो इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन हम क्या करें, हम एडिशन, हमने पढ़ा है तो हम एडिशन को ही यूज करेंगे. हम ऐड करेंगे दो वेक्टर्स को, बट जो दूसरा वेक्टर होगा उसको प्लस b नहीं लेंगे, माइनस b लेंगे. So it can further simplify, na, plus minus minus हो जाएगा and you will again get a minus b. So this is the trick to simplify, this is the trick to solve subtraction of vectors. अभी देखो ये कितना easy है, देखना ध्यान से. ये मान लो हमारा a वेक्टर है, ये हमारा a वेक्टर है, ठीक है. थोड़ा ऊपर बनाता हूँ, need some space here. This is my a vector and this is my b vector. ध्यान से समझना. प्लीज सी द बी वेक्टर. किधर है बी वेक्टर, ध्यान से देखो, ये रहा बी वेक्टर. मुझे क्या करना है, आई डोंट नीड टू ऐड दिस, इस बार मुझसे एडिशन नहीं पूछा गया है, दे आर आस्किंग मी सब्ट्रैक्शन, करेक्ट. तो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट. तो मुझे तो पता है कि सब्ट्रैक्शन इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ एडिशन. व्हेन वी सब्ट्रैक्ट टू वेक्टर्स, मुझे एक्चुअली दूसरे वेक्टर को माइनस बी में कन्वर्ट करना है, प्लस बी को क्या करना है, माइनस बी में कन्वर्ट करना है, फिर ए से ऐड कर देना है. आई विल गेट द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन. तो व्हाट आई विल डू, ये बी वेक्टर ऐसा था ना स्टूडेंट्स, दिस वाज बी वेक्टर, मुझे इसे कन्वर्ट करना है माइनस बी में. बी एंड माइनस बी वेक्टर विल हैव सेम मैग्नीट्यूड एज यू नो, बट क्या डिफरेंस है बी और माइनस बी में, माइनस साइन का. माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन इज अपोजिट. तो इफ दिस इज बी वेक्टर,
तो इसको उल्टा कर दो, पीछे की तरफ ले लो, दिस विल बी माइनस बी वेक्टर, इजंट इट? अगर ये बी वेक्टर है तो माइनस बी किधर होगा? नीचे। याद है ना, दिस वाज प्लस आई कैप, तो दिस वाज माइनस आई कैप, राइट? सो मुझे करना क्या चाहिए, मुझे बी वेक्टर को कन्वर्ट करना है माइनस बी में। तो माइनस बी करने के लिए मुझे इसे ठीक उल्टे डायरेक्शन में सेम लेंथ का, आई शुड मेक श्योर दैट द लेंथ इज सेम लेंथ का बनाना चाहिए। दिस इज माय माइनस बी वेक्टर स्टूडेंट्स, ओके? और ये तो ए वेक्टर था, ठीक है? अब क्या करना है, ए और माइनस बी दोनों ही हमने बना लिया, अब इन्हें सिंपली ऐड करता हूँ। व्हाई सिंपली ऐड? क्योंकि एडिशन ऑफ ए एंड माइनस बी विल ऑटोमेटिकली गिव अस ए माइनस बी, है ना? अब इनको सिंपली ऐड करेंगे ट्राइंगल लॉ की तरह, तो देखो क्या होगा। क्या ये ए वेक्टर का हेड इज कनेक्टेड टू माइनस बी वेक्टर का टेल यहाँ पे? यस। तो ये हेड टू टेल कनेक्शन है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा भाई? थर्ड साइड विच कंप्लीट्स दैट ट्राइंगल, और एरो को अपोजिट रखना मत भूलना। तो ये एक्चुअली में क्या है पता है? इट इज एक्चुअली ए प्लस माइनस बी वेक्टर, बट इसी को तो हम ए माइनस बी बोलते हैं ना। तो हो गया सब्ट्रैक्शन का काम खत्म। सब्ट्रैक्शन क्या है? इट्स वेरी सिमिलर टू एडिशन, राइट? सो एक्चुअली ये जो लाइन मैंने व्हाइट कलर का वेक्टर बनाया है, दिस इज व्हाट रिप्रेजेंट्स द सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो ए माइनस बी वेक्टर है ये हमारा। और अगर कोई पूछ दे ये व्हाट इज दिस, सो दिस इज एब्सोल्युटली व्हाट? ए प्लस बी वेक्टर, है ना? So this is how we do subtraction. Subtraction is nothing but it is addition. बस दूसरे वेक्टर को आप माइनस, दूसरा जो b वेक्टर है उसे माइनस b में कन्वर्ट कर दो, है ना? So that is how it goes. Similarly अगर इस क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया होता, फिर से बना रहा हूँ इसी क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट तरीके से, देखो this was my a vector and this was my b vector, fine, this was my b vector. अगर कोई पूछता कि फाइंड आउट b वेक्टर माइनस a वेक्टर, ठीक है, b माइनस a कोई पूछता, तो हम इसको कैसे लिखते हैं? b प्लस ऑफ माइनस a वेक्टर। तो इस बार हमें किसकी डायरेक्शन उल्टी करनी पड़ती, किसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ती? a वेक्टर। a वेक्टर को कन्वर्ट करना होता माइनस a वेक्टर में, है ना? तो माइनस a वेक्टर में कैसे करेंगे देखो, we can further simplify it like this, ध्यान से देखना। this is b वेक्टर, b वेक्टर थोड़ा अच्छे से पैरेलल बनाते हैं, बी वेक्टर ये रहा, ठीक है? अभी ए वेक्टर को कन्वर्ट करना है माइनस ए वेक्टर में, किधर? ए वेक्टर है स्टूडेंट्स ये, तो माइनस ए वेक्टर होगा ये, है ना? तो यहाँ पे बना दो माइनस ए वेक्टर, दिस इज माइनस ए वेक्टर। बट अभी ध्यान देना कि यहाँ पे हेड टू टेल कनेक्शन स्टेबलाइज नहीं हुआ है। माइनस ए वेक्टर का टेल इज कनेक्टेड टू बी वेक्टर का टेल, वी नीड टू इंश्योर दैट वी कनेक्ट देम इन हेड टू टेल कनेक्शन। तो कैन आई पिक अप माइनस ए वेक्टर फ्रॉम हियर एंड पुट इट हियर? ये भी तो माइनस ए ही होगा, इजंट इट? क्योंकि मैंने पैरेलल शिफ्टिंग की है, एंड पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड इन केस ऑफ वेक्टर्स, राइट? सो दिस नाउ कैन यू सी? अब आप ध्यान से देख सकते हो, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर हेड टू टेल कनेक्शन है, तो अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? इनका रिजल्टेंट ये होगा, this will be resultant and this would be written as b plus minus a, which is actually b minus a, which is actually b minus a. So here we go, ये हमारा आ गया हमारा आंसर, यही है b minus a वेक्टर, ठीक है ना? b minus a वेक्टर। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो इस डायग्राम को और पिछले डायग्राम, यहाँ पे b minus a की डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? ऐसा है ना? देखो डायग्राम को देखो और इस पेन को देखो, एरो ऊपर की तरफ, ठीक? अब पीछे वाले पेज पे देखो a माइनस बी की डायरेक्शन क्या है? सेम है, बट एरो का डायरेक्शन अपोजिट है, नीचे की तरफ। यस, कैन यू सी दिस? a माइनस बी इज हियर एंड b माइनस a इज हियर। तो कैन आई ऑल्सो कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट a माइनस बी और b माइनस a के बीच का क्या रिलेशन है? क्या दोनों की लेंथ सेम है? यस, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो कैन आई राइट इज इक्वल टू माइनस ऑफ b माइनस a, है ना? ऑब्वियसली माइनस को अंदर ले जाओगे, यहाँ पे माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, एंड दिस थिंग विल गेट, RHS will get converted into LHS, ठीक है? So we learned very important aspects of vector addition today. Next class will be complete problem solving, and after that we will do multiplication of vectors,
And once multiplication of vectors is finished, there are a few more mathematical tools which will deal. See, I am giving a lot of time on mathematical tools. There is a reason. होता क्या है ना, जनरली स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल टूल्स अगर समझ में ना आए तो उसे फिजिक्स हो गया, उसका खत्म फिजिक्स. ओके, so throughout the 2 years student keep on facing difficulties due to that one thing, first chapter, mathematical tools. If you are clear with mathematical tools, believe me, physics is a fun to read. ठीक है? If you are not clear with this, every point you will get stuck. Even though you understand concept, but you won't be able to get the answers. क्योंकि आंसर लाने के लिए थोड़ा मैथ्स यूज करना पड़ता है फिजिक्स. ठीक है? So I'll give ample amount of time in mathematical tools. The day I will feel that you have started to solve a lot of questions on your own, I will just stop mathematical tools and I'll go on to the actual physics, which starts from motion in one dimension. ठीक है? That's it for today from my side. Thank you so much. Bye bye guys. Take care. See you again soon.